Hello everyone, my name is Hina Kausar. So, welcome to Hina Ma'am's classes. I hope you all are doing well. I am very good here. So, today our topic is determiners. So, we will discuss about determiners in this class. What is determiners? As determiners is a very basic root of English grammar. Let me tell you a very short definition of determiners. Determiners are the words that used before noun to clarify the noun, to fix the noun. Okay, so long definition is here. A determiner is the words which identifies the noun that is being referred to in a sentence. Okay, so some of the determiners are in the sentences, and how we clarify it, or how we like know it ki what kind of determiners are here. So these are some examples, like amen, this book, my car, some water, every group. So these are the words with the written which written within with this red ink pen as men. Men is, what is men? Men is noun, and are is used, or are is placed before this to clarify the noun, to clarify the quantity or number of a noun. as जो men है वो क्या है, उसको फिक्स किया गया है कि दिस इज सिंगल वन, एक ही है, पर्टिकुलर है, एक ही है, वो दो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते. तो दैट्स वाई वी यूज हियर a men. ओके, इसने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. आफ्टर दैट दिस बुक, this indicates book, as this is book is noun, and this is used before the noun to clarify the book. ठीक है, कि इसने इसको clarify किया है, कि to indicate किया है कि यह है किताब, this book. ठीक है. आफ्टर दैट my car, car is noun and my is written before the car to clarify the car, कि जो कार है वो किसकी है, मेरी है. ठीक है, इट्स बिलोंग टू मी, कि जो कार है उस पर मेरा अधिकार है, मालिकाना अधिकार है. तो दिस इज माई कार. तो जो माइन है, माई इज as determiners here. After that some water, as नाउन फिक्स, एज डिटरमाइनर्स फिक्स द नाउन, कि यहाँ पर जो सम है उसने वाटर को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, कि जो वाटर है वो कुछ क्वांटिटी में है, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ, देयर इज नॉट लॉट्स ऑफ वाटर, वाटर इज वेरी लिटिल क्वांटिटी, एज अ सम वाटर, कुछ पानी है उसमें. ठीक है, तो दैट्स वाई सम हियर, सम इज डिटरमाइनर्स. आफ्टर दैट एवरी ग्रुप. ठीक है, तो एवरी ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्रुप को बताया गया है कि नॉट ऑल ग्रुप. ठीक है, नॉट एनी ग्रुप, दिस इज एवरी ग्रुप, हर ग्रुप. ठीक है, हर ग्रुप की बात चल रही है. तो दिस इज ग्रुप एंड दिस इज नाउन, एंड एवरी इज यूज बिफोर दिस नाउन टू fixed is. Okay, this is the like some examples of determiners. Let's read to next. So this is kinds of determiners. So firstly we will discuss two types of determiners. First is articles and other is demonstrative. So here articles. Okay, how many articles are there? Articles are three: a and the. Okay, so here these two kinds of articles, a and and represent a single one. Okay, everything it's present single one thing. Like I'm writing example. Okay, so here this is an example. A boy is going to market. So here a, this is a represent boy, as boy is in a number of single quantity, कि जो boy है वो fix है. ठीक है, fix है कि जो boy एक ही है, वो दो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते. The boy is a single quantity. So that's why we use a here. Why we use a here? Why we use no? We didn't use an here because of sound of vowels and consonant. A and an use as the sound of vowels. जैसे यहाँ पे कौन सा साउंड है, b, b is consonant, it is consonant, and that's why we use here a. अगर यहाँ पे vowel sound होता तो हम an कैसे यूज करते हैं, देखिए.
An eagle is flying in the sky. एक ईगल जो कि आसमान में उड़ रहा है. That's why we use an here because of vowel sound. E जो है वो क्या है, एक vowel sound है. That's so because of this we use an for representing a single one. Okay, a और an जो हमेशा यूज होता है वो एक चीज के लिए यूज होता है, एक चीज को बताने के लिए. तो this is like a and the always use for लाइक क्लैरिफाई स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक है, ठीक, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो कोई खास है. ठीक है, ए और एन यूज होगा फॉर नॉन स्पेसिफिक, एक आम चीज़ के लिए. एंड द जो यूज होता है, द ऑलवेज यूज एज स्पेसिफिक थिंग. ठीक, एज आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर. As if I am writing here, I eat an apple daily. Okay, so here this is represent कि जो मैं हमेशा रोज एक एप्पल खाती हूँ. तो यहाँ पे जो एप्पल की बात हुई है वो एक आम एप्पल की बात हुई है कि मैं कोई भी एक एप्पल खा लेती हूँ. बट इफ आई एम राइटिंग दिस अगेन लाइक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि द एप्पल आई एट yesterday was sour. ठीक है, जो एप्पल मैंने कल खाया था वो कैसा था, खट्टा था. तो यहाँ पर मैंने ए एन यूज किया और यहाँ पे मैंने द यूज किया. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ जो है एप्पल को मैं बता रही हूँ आपको कि जो मैं एप्पल है रोज खाती हूँ, लेकिन अब मैं आपको वो बात बता चुकी हूँ एप्पल के बारे में. तो वो एप्पल क्या हो गया है, खास हो गया है. इट्स जस्ट एक स्पेसिफिक हो गया है. तो यहाँ पर आप जान चुके हो कि जो मैं एप्पल है वो रोज रोज खाती हूँ, तो एप्पल की जानकारी आपको आ चुकी है. तो जब आप किस चीज़ की जानकारी जब आपको दूसरी बार बताई जाती है तो वो नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बन जाती है. दैट्स वाई वी यूज द फॉर एप्पल हियर एंड ए एन हियर फॉर एप्पल एज अ नॉन स्पेसिफिक एंड द एज अ स्पेसिफिक. तो दैट्स वाई वी यूज हियर द एप्पल आई एट यस्टरडे वाज सोर. जो कल मैंने एप्पल खाया था वो खट्टा था. तो हियर आफ्टर दिस नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेटिव इज मेड अप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है? व्हेन वी जस्ट डूइंग समथिंग लाइक फिजिकल वे, है ना. जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं या करके दिखाते हैं एज अ फिजिकल वे, यानी कि अब लाइक करके दिखाना फिजिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन. तो उसी से ही डेमोन्स्ट्रेटिव बना है जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं. व्हेन वी इंडिकेट समथिंग लाइक इफ देयर इज लॉट्स ऑफ पेन. ठीक है, अब हाउ विल यू इमेजिन और हाउ विल यू नो कि व्हाट इज माई पेन और विच इज माई पेन, जब तक मैं उसको इंडिकेट नहीं करूँगी. ठीक है, आई एम जस्ट लाइक इंडिकेटिंग कि दिस इज माई पेन. आई एम इंडिकेटिंग विद माई फिंगर और विद माई हैंड कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, दिस इज हिज बैग. तो जब तक हमें इंडिकेशन नहीं दिखता है तब तक हम चीज़ों को ठीक से नहीं जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास है या दूर है. वैसे ही अगर हम पास्ट की बात करते हैं, कोई प्रेजेंट में कोई भी सिंगल चीज़ हमारे पास है तो हम दिस का यूज़ करेंगे कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ हर हाउस, दिस इज़ योर फादर. सो अगर हम पास्ट की बात करते हैं कि दैट वॉज माई लाइक बाईसाइकिल, कि वो मेरी बाईसाइकिल थी. ठीक है, तो हम पास्ट में या फिर दूर की चीज़ों के लिए अगर सिंगल वन चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं दैट का. वैसे दीज एंड दोज में है व्हेन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर near to us we use these, and for in present we use these, and lots of things that very far from us, so we use those, or in future we use those. Okay, in future or in past we use those. So here I am writing like this pen is mine. Okay, this pen is mine. Pen is
नाउन हेयर है ना, नाउन से पहले हमने क्या लगाया, दिस लगाया टू इंडिकेट पेन, यानी कि पेन को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ऐसे मैंने बताया जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स फिक्स कर देते हैं नाउन को। अब जो ये पेन है इस पर क्या हो गया है कि मेरा अधिकार हो गया, लाइक ये मुझसे जुड़ गया है कि दिस, ये जो पेन है वो ये यहाँ पर पेन है, ठीक है, यहाँ है, कहीं और नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंट पेन एज लाइक नियरेस्ट वन, कि वो मेरे पास में है। अभी मैं यही कहूँ दैट कार इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट कार इज माइन। अब मैं जो जिस कार की बात कर रही हूँ वो कार मेरे पास नहीं है, मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि दैट कार इज माइन, जो मुझसे थोड़ी दूर है पर मैं उसको इंडिकेशन करके दिखा रही हूँ कि जो वो कार है वो मेरी है। तो यहाँ पे फर्क समझ में आया आपको, कि दिस व्हेन वी यूज दिस व्हेन समथिंग नियर टू अस, और व्हेन विल बी यूज दैट, व्हेन विल यूज दैट जब चीजें हमसे थोड़ी दूर होती हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ऐसे दीज एंड दोज का केस है, ये भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। So guys, let's move to next part. This is quantifiers. What is quantifiers? Quantifiers are the words that denotes number and quantity of the noun. Okay, and it can be used with countable and uncountable noun. So let's see what kind of quantifiers are there, like few, little, some, many, any, much. These are quantifiers. Like example, I am writing okay. So here this is the example, my some water is in my bottle, कि there are not lots of water, they are not little water, but it's denotes some water इज इन माई बॉटल, के इसने क्या किया है, सम लगने के बाद जो वाटर की क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है, वो यहाँ पर हमें पता चल रही है कि जो वाटर है वो फिक्स है एज ए सम वाटर, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, कुछ कुछ पानी है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं दे डिनोट्स क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले बात करी थी कि जो क्वांटिफायर्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब वाटर, व्हाट इज वाटर हियर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने क्या यूज किया है, सम यूज किया है फॉर अनकाउंटेबल नाउन। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। दिस इज अ क्वेश्चन कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या, स्टूडेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन, दैट्स वाई वी यूज योर मैनी स्टूडेंट, ठीक है। सो सम, जो सम है, मच है, ठीक है। तो दीज सम, मच, little, these are used for uncountable noun, like few, many, any, these are used for uncountable noun. Okay, so यहाँ पे जो many है, तो many किसको डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है, कि जो स्टूडेंट है उनकी लाइक इन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी बता दी है, मात्रा बता दी है कि जो स्टूडेंट है वो many है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप। क्वांटिफायर्स में नंबर भी आ जाता है, तो हम इसमें नंबर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि क्वांटिफायर डिनोट्स नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। सो हियर नंबर, there are two types of number in quantifier, first is cardinal and other is ordinal number. Okay, so what kind of cardinal number and what is ordinal number? Cardinal number always denotes or always refers like these kind of number, you can see 4, 5, 8. Okay, these kind of number are known as cardinal number, and other is ordinal number, like first, second, third, fifth,
लास्ट, ओके, लास्ट फर्स्ट, ठीक है. तो दीज आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर. गेट इट. तो जस्ट लेट्स मूव टू सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज 3 children are crying. ओके, 3 चिल्ड्रन आर क्राइंग, के जो 3 बच्चे हैं वो रो रहे हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज दिस, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स इज दिस. तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स एज अ कार्डिनल नंबर. ओके, आफ्टर दैट if I am taking the example of ordinal, so here okay, so here next example is कि last building of this colony is very fragile. means जो इस colony की जो last building है वो बहुत ही fragile, माने बहुत ज़्यादा weak हो चुकी है. fragile the synonym of fragile is weak. तो जो weak हो चुकी है, तो यहाँ पे जो last use हुआ है before building, तो it's known as number. okay, it's known as quantifier as ordinal number. okay, so okay, let's move to next part is possessive and distributive. okay, what is possessive? Possessive are the words that belongs to something to someone. okay, जैसे कि किसी चीज पर मालिकाना हक जताना. possession का मतलब यही होता है कि belongings. ठीक है, क्या चीज मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे belong करती है, relate करती है. ठीक है, तो these are the words my, our, his, her, yours. okay, these words are known as possessive. okay, I am writing an example here, you can see that. okay, so here my brother is a dancer. okay, so here brother is a noun, so what we use before noun? my. okay, so my is a possessive form of determiners. okay, because brother who relate brother related to me, वो मेरा भाई है. that's why I use my here for relating thing, for belongings thing. ये अपना मालिकाना हक जताने के लिए हमने किसका यूज किया? my का. ऐसे यहाँ पे हो सकता था his brother, her brother, उसका भाई, your brother, तुम्हारा भाई. ठीक है, तो ये दूसरा है माई कार इज वेरी बिग. तो यहाँ पे किस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है? कार पर, कि जो वो कार है किससे रिलेटेड है? मुझसे रिलेटेड है. दिस इज माई कार. ओके, दैट्स वाई वी यूज हियर माई, कि मेरी कार जो बहुत बड़ी है. दिस इज माई कार इज वेरी बिग. सो हियर my is a form of possessive. after that distributive. what is the meaning of distribute? distribute का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, है ना, चीजों को बांटना. तो this is distributive. तो जैसे distributive में क्या आ जाता है? either और, neither और. ठीक है, तो ये क्या है? distributive words हैं. ठीक है, like each, every, हम each लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स. जैसे कि अभी मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ. ओके, सो सेंटेंस इज नीदर राम नॉर राजू विल गो टू द पार्टी. ना तो राम और ना ही राजू किसमें? पार्टी में जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें चीजों को बताया जा रहा है कि
कोई भी नहीं जाएगा, है ना, ना तो राम और ना ही राजू। तो उसमें दोनों की किसी चीज को लेकर बताया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है कि ये दोनों इसमें नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही दूसरा हम लिखते हैं, एवरी से ले लेंगे, एवरी ग्रुप, है ना, एवरी ग्रुप में आ गया ये हर। सो लास्ट but not the least, last part is interrogative. Okay, interrogative determiners. Interrogative determiners always in, हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइक एडजेक्टिव हो वो या डिटरमाइनर्स हो, किसी की भी हम बात करते हैं तो जो इंटेरोगेटिव होते हैं दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। दीज वर्ड्स ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो जहाँ पे भी अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर इंटेरोगेटिव। ठीक है, सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स सी। जैसे अगर हम व्हाट की बात करें तो यहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लाइक यूज हुआ है व्हाट, वो अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन की व्हाट इज डिटरमाइनर्स इन इट, तो यू कैन से दैट व्हाट इज डिटरमाइनर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स इट इज। तो आप कह सकते हैं कि इट इज इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम विच की बात करें या हुज की बात करें तो हम कहेंगे हुज बुक, whose book is this, मीन्स ये किसकी बुक है ना, किसकी बुक है। तो क्या जो बुक है वो किसको लाइक रेफर्स कर रही है, कि वो क्वेश्चन पूछ रही है कि जो ये बुक है वो किसकी है। तो एज हुज, whenever whose place before noun for asking question you can say that it is interrogative determiners. Okay, so these all are all 5 kinds of determiners. Okay. So class, all these 5 determiners are here: article, demonstrative, possessive, quantifiers, distributive and interrogative. ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको इन सबकी जो लाइक यूज है वो बता दिया है। तो there are some examples of articles like a and the are known as article. Okay, after that demonstrative, this, that, these, those, these words are known as demonstrative. Like possessive, जैसे मैंने बताया कि show the belongings, okay, or show the ownership of this particular things. So here my, his, her, your, ours, these words known as possessive. After this quantifiers like explain the things as quantity, उसकी quantity बताता है कि वो कितनी quantity में है। तो few, little, some, many, these words are known as quantifiers. After that distributive, each, every, either, neither, means ये क्या करता है, distribute करता है things को। ठीक है, बांटता है थिंग्स को, जैसे कि ईच हर एक, एवरी हर कोई, ठीक है, ईदर या तो, नीदर ना तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट लाइक क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, दीज वर्ड्स ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।